Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Today we are going to start new chapter which is oscillation, or we will going with simple harmonic motion. In the oscillation chapter, in today's video we are going to discuss about some of the important terms. Number one is vibratory motion. Vibratory motion. Now, first of all, let me tell you what is vibratory motion. The vibratory motion is basically to and fro motion, to and fro motion. It is to and fro motion. If I can take the example here, so example is simple pendulum. Simple pendulum. I hope the simple pendulum you all relate with it, but I can show you the picture of simple pendulum too. For example, if I can draw here a picture of simple pendulum, so simple pendulum is somehow this is the string and this is a bob attached here. Okay, so this is the basically the simple pendulum. Now, how the vibratory motion perform the to and fro motion, or why we do say this? The example is simple pendulum because from here the bob will move here, or the bob will move here, and again it will move to its same position. So to and fro motion is called as vibratory motion, and example is simple pendulum. Another motion is basically second motion is periodic motion. Second motion is periodic motion. Periodic motion. So if I can tell you what is difference between vibratory motion and periodic motion, as I told you, vibratory motion is to and fro motion, but periodic motion is a motion which repeats itself after a fixed interval of time. एक ऐसा मोशन जो कि अपने आप को रिपीट करे एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर. Let me write here, then I'll be explaining you with the help of example. Motion repeats itself after fixed interval of time. Okay, let me give you an example of yes. Example is like in 7 days. We do have 7 days of a week. एक वीक के अंदर हमारे पास कितने डेज होते हैं? 7 days. 7 days of week. And if I do take here only the day Saturday, अगर यहाँ पर मैं एक डे लेती हूँ जो कि है Saturday. Now here you can see this Saturday will repeat itself after the fixed interval of time. एक वीक के अंदर एक ही सैटरडे गुजरा, फिर जो दूसरा सैटरडे आएगा वो फिर दूसरे वीक की 6th डे पर हम बोलते हैं सैटरडे. सैटरडे 6th डे, तो फिर दूसरे दिन भी ये 6th डे पर सैटरडे दोबारा रिपीट होगा. तो दिस इज बेसिकली व्हाट मोशन जो कि रिपीट हो एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद, उसको हम कहते हैं पीरियोडिक मोशन. उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम बोलते हैं पीरियोडिक मोशन. अब पीरियोडिक मोशन तो हो गई. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट साइकिल. साइकिल क्या होती है इन द फिजिक्स? साइकिल साइकिल अगर मैं बोलूं क्या होती है, तो एक ऐसी चीज जो जहां से शुरू होती है और वहीं खत्म होती है. साइकिल इज समथिंग द पॉइंट फ्रॉम विच इट स्टार्ट्स इट विल एंड एट दैट पॉइंट. जो जहां से शुरू होती है वहीं पर ही खत्म होती है. For example, as I told you the simple example of simple pendulum, again I'm going to tell you. Okay, for suppose ये है मेरे पास एक mean point. ये मेरे पास क्या है? एक mean point है. ठीक है. उसके बाद ये बॉडी जब ये यहाँ से लेकर
ये यहाँ पहुंच रही है, तो ये इसका क्या है, ये बेसिकली इसका है एक्सट्रीम पॉइंट, तो क्या पॉजिटिव। उसके बाद ये बॉडी फिर दोबारा यहाँ पहुंच रही है, जो कि इसका क्या है, नेगेटिव एक्सट्रीम पॉइंट, नेगेटिव एक्सट्रीम पॉइंट, ठीक है, नेगेटिव एक्सट्रीम पॉइंट। अब क्या होगा, अब एक साइकिल कैसे कंप्लीट होगी, अब एक साइकिल वो जो के पॉजिटिव एक्सट्रीम और नेगेटिव एक्सट्रीम को एटलीस्ट एक दफा टच करे, किसको, पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन को और नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन को एक दफा तो एटलीस्ट टच करे। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ साइकिल क्या है, टू एक्सट्रीम पॉइंट जो कि एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है को टच करे एटलीस्ट वंस, एक दफा तो हो जरूर, एटलीस्ट वंस। अब कैसे, इफ मेरी कोई, अगर ये मेरे पास एक बॉडी है और ये शुरू हो रही है मीन पोजीशन पे, ठीक है, मैं कह रही हूँ ये कहाँ से शुरू हो रही है, मीन पोजीशन पे। फॉर एग्जाम्पल ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये जीरो पॉइंट। तो बॉडी पहले जीरो से मूव करेगी, कहाँ पर मूव करेगी, ए की तरफ, ठीक है। अगर मैं बॉडी को मीन पोजीशन में पुश करूं, फिर बॉडी पहले कहाँ जाएगी, मीन पोजीशन से पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन मीन्स ए की तरफ। ए के बाद दोबारा बॉडी रुक नहीं जाएगी, फिर दोबारा बॉडी ए से जाएगी मीन पोजीशन पर, ओ पर आएगी, ओ पर वो स्टे नहीं करेगी, ओ से डायरेक्ट वो बी पे चली जाएगी, फिर ये बी पे जाएगी एंड बी के बाद वो दोबारा फिर आ जाएगी मीन पोजीशन पर, दोबारा कहाँ आएगी, मीन पोजीशन पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो एक साइकिल है वो एक एटलीस्ट एक दफा एक्सट्रीम, दोनों पॉइंट एक्सट्रीम के टच कर रही है। एक तो ये ए को जो कि है पॉजिटिव एक्सट्रीम और एक ये है बी जो कि है नेगेटिव एक्सट्रीम। तो दो एक्सट्रीम जो कि एटलीस्ट एक दफा टच हो, ठीक है। और यहाँ पर मैंने रेफरेंस पॉइंट, हमेशा साइकिल के अंदर यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट मैंने क्या लिया है, मीन पोजीशन। रेफरेंस पॉइंट क्या लिया है, मीन पोजीशन, जिसको हम क्या कहते हैं, रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट मेरे पास ये आ गया। तो आई होप साइकिल का कॉन्सेप्ट भी आपको समझ आ गया होगा। नाउ फोर्थ वी डू हैव दैट इज टाइम पीरियड। फोर्थ हमारे पास क्या है, फोर्थ हमारे पास है टाइम पीरियड। नाउ टाइम पीरियड तो हम सब ने अपनी मतलब लोअर क्लासेस के अंदर पढ़ा होगा। टाइम पीरियड क्या होता है, कोई टाइम रिक्वायर्ड हो एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए, एक पर्टिकुलर टाइम रिक्वायर्ड हो, किसके लिए, एक पर्टिकुलर टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन साइकिल, टू कंप्लीट वन साइकिल, एक साइकिल कंप्लीट करने को एक पर्टिकुलर को जो टाइम रिक्वायर्ड होता है ना, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड, उसको हम बोलते हैं क्या, टाइम पीरियड। ओके। तो कैसे, एक साइकिल तो मैंने आपको बता दी जिसके अंदर एटलीस्ट दो एक्सट्रीम पॉइंट को वो टच करे, ठीक है, उसको हम कहते हैं साइकिल। तो टाइम पीरियड रिक्वायर्ड टू कंप्लीट एटलीस्ट वन साइकिल, ये जो एक साइकिल पूरी हो रही है, जीरो टू ए टू ओ टू बी एंड बी टू ओ, ये जो एक पूरी कंप्लीट साइकिल हो रही है ना, इसके अंदर जो भी टाइम लगा ना, उसको हम बोलते हैं सीधा टाइम पीरियड। ठीक है, तो आई होप टाइम पीरियड भी समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वी डू हैव विच इज फ्रीक्वेंसी। दूसरी हमारे पास टर्म होती है विच इज फ्रीक्वेंसी। Now the simple definition, if I do talk about frequency, so frequency is basically the reverse of time period. Okay, it is the reverse of time period in which number of cycles completed in 1 second. Now here you can see the time is fixed. इन्होंने टाइम बताया कि सिर्फ एक सेकंड के अंदर जितनी भी नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीट हों, जितनी भी नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीट हो किसके अंदर, पर सेकंड के अंदर, एक सेकंड के अंदर, दैट इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी। तो हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड, क्योंकि टाइम पीरियड क्या था, टाइम पीरियड था टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन फ्रीक्वेंसी,
और फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीट हो पर सेकंड के अंदर, 1 सेकंड के अंदर। और फ्रीक्वेंसी को हम मेजर करते हैं किसके अंदर, हर्ट्ज के अंदर। फ्रीक्वेंसी इज मेजर इन हर्ट्ज। अगर दूसरी एग्जांपल, अगर दूसरी हम बोलें फॉर्मूला फ्रीक्वेंसी का क्या हो सकता है, तो हम बोल सकते हैं अगर हमें किसी की भी फ्रीक्वेंसी मालूम करनी हो तो वी डू से नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीट, total number of, wait, let me write here again. Okay, total number of cycle completed, time taken, time taken. If I do say, we can say अगर मेरे पास टोटल साइकिल्स कंप्लीट हुई हैं 100 और उसको टाइम लगा है 10 सेकेंड्स, तो अब मुझे बताओ 1 सेकेंड के अंदर कितनी साइकिल कंप्लीट होंगी। तो 0 0 कैंसिल, तो 10 साइकिल्स कंप्लीट इन per second, 1 second के अंदर कितनी कंप्लीट हुई, 10 cycles. So this is how you can find frequency from this formula to total number of cycles per time taken. After frequency, now here the example is, another term is which is displacement. Displacement. Now in basically simple harmonic motion or an oscillation, the displacement is distance of vibrating body from mean position. First of all, if I can talk about कि हमारे पास जो displacement होती है, we all know it is a vector quantity. It is what? It is a vector quantity. ठीक है, अब ये तो हमें पता चल गया, ये तो वेक्टर क्वांटिटी है। अब डिस्प्लेसमेंट होती क्या है, तो डिस्टेंस ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी मीन पोजीशन से जो वो बॉडी एक्सट्रीम पोजीशन पे जा रही है, आइदर इट इज पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन और इट इज नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन। जो मीन से वो एक्सट्रीम पोजीशन पे जा रही है ना, तो वो जो डिस्टेंस कवर हो रहा है ना, दैट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। तो इफ आई कैन राइट डिस्टेंस of vibrating body from mean position। और हमने अपनी बेसिक क्लासेस के अंदर पढ़ा हुआ होता है, ये तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट हम कैसे मेजर करते हैं। इट इज बेसिकली इनिशियल पोजीशन, इनिशियल टू फाइनल पोजीशन तक ये जाती है, इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। For example, if I can draw here again the simple pendulum, but I'm just drawing here. Okay, this is basically the mean point. This is negative extreme position and this is positive extreme. This is positive extreme position. Okay, अब यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, here you can see, पहले तो मैंने कहा था जो डिस्टेंस कवर करे। फॉर एग्जाम्पल मेरा पेंडुलम कहाँ है, आई हैव पेंडुलम हेयर, मतलब मेरी जो ये पेंडुलम की है ना, वो अभी यहाँ पर, दैट इज हेयर। तो मैं बोल सकती हूँ मेरा पेंडुलम इज एट दिस पोजीशन, हेयर इज माय पेंडुलम। अब मेन पोजीशन से पेंडुलम तक का रास्ता, क्योंकि अभी मैं बोल रही हूँ मेरा पेंडुलम कहाँ है, यहाँ है, इस पोजीशन पर है, तो मतलब हमारे पास फाइनल पोजीशन क्या हुई, फाइनल पोजीशन ऑफ कोर्स पेंडुलम हुई। फाइनल पोजीशन क्या हुई हमारे पास, फाइनल पोजीशन हमारे पास हुई पेंडुलम। ठीक है, और मेन पोजीशन अपने पास क्या है, मेन पोजीशन इज इनिशियल पोजीशन, जहां से हमारे पास शुरू होगी डिस्प्लेसमेंट, जहां से हमारे पास क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट शुरू होगी, दैट इज इनिशियल पॉइंट। तो यहाँ अगर आप लोग देखें तो ये हमारे पास क्या है, मेन पोजीशन टू पेंडुलम तक का जो रास्ता है ना, दैट इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट, दैट इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट।
अब अगर ये तो हो गया इस साइड का, अगर फॉर सपोज एक दूसरी एग्जांपल के अंदर अगर मैं बोलूं माय पेंडुलम इज हियर, अगर मेरा पेंडुलम कहाँ है, ये हमारे पास एक्सट्रीम पॉइंट जो कि है पॉजिटिव, दिस इज एक्सट्रीम पॉइंट but it is negative and this is mean point, ठीक है। if I do say कि मेरा पेंडुलम अब है यहाँ पर, if my pendulum is here, मेरा पेंडुलम कहाँ है, यहाँ पर है, ओके। तो अब मीन टू पेंडुलम, पेंडुलम क्या है, एक फाइनल है क्योंकि मुझे ऑफ कोर्स मेजर करना है पेंडुलम कहाँ है हमारे पास, पेंडुलम है, इट इज अ फाइनल पोजीशन। मीन टू पेंडुलम, the distance is called as displacement here, it is the negative displacement because it is the extreme negative point, okay। so ये होता है distance of vibrating body from mean position to the exact final position, and final position could be anything like your pendulum is placed or any object, okay। अब यहाँ पर क्या होता है हमारे पास, यहाँ पर बेसिकली अगर एक ऑब्जेक्ट क्या आ रहा है, अब इस पॉइंट से हमने क्या सीखा, जो कि मैंने बताया, जो कि क्या है, मेन पोजीशन से कोई बॉडी डिस्प्लेस हो रही है पेंडुलम तक। तो यहाँ पर एक पॉइंट नोट कीजिएगा जो कि है इन एसएचएम, एसएचएम मीन सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर है ना, द डिस्प्लेसमेंट, जो कि डिस्प्लेसमेंट होती है ना, वो हमेशा कहाँ होती है, जो कि डिस्प्लेसमेंट वो होती है वो हमेशा अवे होती है, कहाँ होती है, इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द मेन पोजीशन, अवे फ्रॉम मेन पोजीशन, क्योंकि हमारे पास क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया हमारे पास मेन पोजीशन है एक इनिशियल पॉइंट, तो इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, तो देखिए ये डिस्प्लेसमेंट क्या हुई है यहाँ पर, मेन पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट हमेशा हमारे पास क्या होती है, मिनिमम होती है, कम होती है, मिनिमम होती है। तो इनिशियल पॉइंट पे अगर मिनिमम है तो ये फाइनल पे जाएगी तो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो यहाँ पर मैं बोल सकती हूँ जो हमारे पास एसएचएम है ना, उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट जो होती है वो अवे फ्रॉम द मेन पोजीशन होती है, अवे फ्रॉम द मेन पोजीशन, ठीक है। और अगर मैं बोलूं, अगर मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट, एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि कहाँ है, जो कि मेन पोजीशन पे आ रहा है, जो कि मेन पोजीशन पर आ रहा है, ओके, ऑब्जेक्ट कमिंग टू मेन पोजीशन, ठीक है। मतलब मेन पोजीशन पे कैसे, मतलब ये फाइनल पोजीशन मींस एक्सट्रीम पोजीशन से इनिशियल पोजीशन मींस मेन पोजीशन पे आ रहा है, फाइनल पोजीशन से ये मेन पोजीशन पे आ रहा है। अगर यहाँ पर मैं एग्जांपल वो ड्रॉ करूं, तो फॉर सपोज अगर मेरे पास पेंडुलम ये है जो कि यहाँ पर है, ठीक है, और ये है मैं मेन पोजीशन, ये है एक्सट्रीम पोजीशन। अब ये देखें, ये हमारे पास पेंडुलम है ना, वो कहाँ जा रहा है, वो एक्सट्रीम से मेन पोजीशन पे आ रहा है, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारे पास कहाँ है, ऑब्जेक्ट यहाँ है, तो ये एक्सट्रीम से क्या जा रहा है, मेन पे आ रहा है। तो मतलब इसकी यहाँ पर तो मैक्सिमम थी ना, हमने पता था यहाँ पे हमारे पास डिस्प्लेसमेंट क्या थी, मैक्सिमम थी, और मीन पे क्या थी, मिनिमम थी। तो ये देखिए मैक्सिमम से मिनिमम पे आ रहा है, तो मतलब ये मेन पोजीशन पे क्या हो जाएगी, उसकी डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज हो जाएगी, यहाँ मैक्सिमम थी, यहाँ थोड़ी कम हो गई, यहाँ और कम हो गई, और यहाँ पर ऑलमोस्ट मिनिमम और जीरो हो गई। तो इफ द ऑब्जेक्ट इज कमिंग टूवर्ड्स मेन पोजीशन, अगर ऑब्जेक्ट कोई मेन पोजीशन पे आ रहा है तो उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, इट्स डिस्प्लेसमेंट डिक्रीजेस, इसकी डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज होगी, मिनिमम होगी, डिक्रीजेस। तो यहाँ से अगर मैं कंक्लूड करूँ तो मैं बोल सकती हूँ कि हमारे पास मैं बोल सकती हूँ कि जो मेन पोजीशन है, ओके लेट मी टेक दिस आल्सो, या एट मेन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट क्या है, मिनिमम है और जीरो है, डिस्प्लेसमेंट एज मिनिमम और जीरो,
ओके। और अगर यहीं पे ही मैं एक्सट्रीम पोजीशन की बात की जाऊं तो एट एक्सट्रीम पोजीशन डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट? डिस्प्लेसमेंट इज मैक्सिमम। डिस्प्लेसमेंट क्या है हमारे पास? मैक्सिमम है। और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हम डिनोट करते हैं बाय एक्स नॉट। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को भी डिनोट बाय एक्स नॉट। ठीक है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जहां भी होती है वी डिनोट इट बाय व्हाट? वी डिनोट इट बाय एक्स नॉट। सेमी हाईलाइटेड। ओके। तो जैसे कि मैंने मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट थी वो क्या है? एक्स नॉट है। तो अब यहाँ पर एक्स नॉट का कॉन्सेप्ट क्या है? तो एक्स नॉट बेसिकली वी डू से अबाउट एम्पलीट्यूड। हम एक्स नॉट बोलते हैं, ये क्या है? ये हमारे पास एम्पलीट्यूड है। तो नाउ यू कैन इजिली डिफाइन व्हाट इज एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड इज बेसिकली द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। हमारे पास मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कहाँ थी? एक्सट्रीम पोजीशन पे थी। तो हमारे पास एक्स नोड मीन्स मैग्नीट्यूड क्या कहता है? जो मैक्सिमम डिस्टेंस है, मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। वाइब्रेटिंग बॉडी का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज एक्स नॉट और एम्पलीट्यूड। एक्स नॉट और एम्पलीट्यूड। ओके। तो अगर यहाँ पर मैं आपको डायग्राम से बताऊं तो again here I'm going to draw the same diagram. This is positive extreme position and this is negative extreme position, and here it is mean position, mean point. Okay, ये I denote it as a A, this is B and this is O. Now here if you can see, if the body is displaced first from mean position to extreme position, अगर पहले मेरी बॉडी मीन पोजीशन से कहाँ जा रही है? एक्सट्रीम पोजीशन पर। ठीक है, मीन पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन मीन्स मीन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट क्या थी? जीरो थी। जीरो से डिस्प्लेसमेंट क्या हो रही है? मैक्सिमम हो रही है। मीन्स यहाँ पर हमारे पास एक्स नॉट अचीव हो रहा है। ठीक है, एक्स नोट के बाद ये एक्सट्रीम पोजीशन से दोबारा जा रही है मीन पोजीशन पर। दोबारा मीन पोजीशन पे जा रही है मीन्स क्या हो रही है? डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज हो रही है। डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज हो रही है, लेकिन ये मीन पोजीशन पे स्टे नहीं कर रही। मीन पोजीशन से दोबारा ये बी पॉइंट मीन्स नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन पे जा रही है, और नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन को हम बोलेंगे माइनस एक्स नोट, क्योंकि ये भी है तो मैक्सिमम डिस्टेंस मीन्स एक्सट्रीम, लेकिन नेगेटिव है तो हम बोलेंगे नेगेटिव एक्स नॉट। अब एक्स नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन से दोबारा आ रही है मीन पोजीशन पर, एंड नाउ हियर द डिस्प्लेसमेंट डिक्रीजेस। तो ये पूरा जो पाथवे है, एक पूरी साइकिल जो कंप्लीट हो रही है फ्रॉम मीन टू एक्सट्रीम, देन एक्सट्रीम टू मीन, मीन टू नेगेटिव एक्सट्रीम टू मीन पोजीशन. This is the complete pathway which define about the cycle. Now last graph of this video. Okay, this is I'm going to draw a graph. Here you can see. Perfect. This is I have drawn a graph. अब इस ग्राफ के अंदर we want to highlight some points. Some points like how this is what this is main point from which it is started. अब इसी ग्राफ को जो मैंने यहाँ डिस्कस किया है, the same graph, oh sorry, the same complete pattern I am going to discuss in a graph की format के अंदर. First mean to A position is extreme position. Okay, then again extreme position to mean position, this is mean position, and then mean to extreme which is negative extreme. So here you can see this is downward negative extreme, positive extreme, and after that again to mean position. तो here you can see if I can say, अगर यहाँ से मैं आपका पाथ बताऊं तो दिस इज फ्रॉम जीरो टू ए हमारे पास क्या अचीव हो रही है? पॉजिटिव एक्स नॉट, जीरो
to A, the positive x naught is achieved, and then from A to 0 again, A to 0, which is known as A to 0 means displacement decreases. Now again 0 to negative extreme, 0 to negative extreme which is what B. फिर मेरे पास 0 से नेगेटिव एक्सट्रीम मीन्स बी पर गया, इट इज द नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन, and then from negative extreme position means b to again 0 mean position. So this is the complete you can say graph, and this graph is known as sinusoidal curve. This is known as sinusoidal curve. We will discuss about these sinusoidal curve in the next video. I have just told you the graph here. So I hope this is clear to you, some of the basic terms of this chapter. And if you have any question, drop in the comment box. I'll surely reply you. Bye bye.